Hello everyone, welcome you all in your own channel Learn Everything. So ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਫਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਮਾਸਟਰ ਕੀਡਰ ਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ what are the buffer solutions. The solution which resist the change in the hydrogen ion concentration on addition of small amount of acid. मतलब कि ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ buffer solutions ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਨ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਪੀਐਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਸਿਡ ਜਾਂ ਬੇਸ ਪਾਇਆ ਕਿਸੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਦੀ ਪੀਐਚ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਪੀਐਚ ਦੇ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ ਕਰਨਾ ਰੋਕਣਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪੀਐਚ 'ਚ ਚੇਂਜ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਫਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਾਨੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਿ ਮਤਲਬ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਫਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪੀਐਚ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਸਿਡ ਜਾਂ ਬੇਸ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪੀਐਚ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਨ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਅ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮੇਨਟੇਨ ਦਾ ਫੇਅਰਲੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਪੀਐਚ ਯਾਨੀ ਪੀਐਚ ਨੂੰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰੱਖਦੇ ਆ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਐਸਿਡਿਟੀ ਐਂਡ ਬੇਸਿਸਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਉਹ 'ਚ ਐਸਿਡ ਜਾਂ ਬੇਸ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਚੇਂਜ ਪੀਐਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰੱਖਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬਲੱਡ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਬਫਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਬਲੱਡ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜਾ ਬਫਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ क्योंकि जो ब्लड है वो कंटेन करता दी पीएच अराउंड 7.35 इन स्पाइट ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ फूड वी टेक असी जिन्ने मर्जी फूड खाने किन्ने एसिडिक होंगे है ना सो अलग अलग असी किन्नियां मतलब इनटेक करते हैं किन्नी तरह का फूड जोड़ा है बट फिर भी ब्लड की जी पीएच है वो 7.35 जी ही रही है ठीक है। बफर सोल्यूशन दो तरह के होंगे एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर एसिडिक बफर की होंगे ने जिन्हों के इक्विमोलर क्वांटिटीज़ होणगियां मतलब सिमिलैरिटी तो होणगे इक्विमोलर होणगे वीक एसिड एंड स्ट्रोंग बेस देखो जो एसिडिक है वीक एसिड होगा उत्थे बेस स्ट्रोंग होएगा जो बेसिक बफर की गल करांगे उत्थे वीक बेस होएगा तो स्ट्रोंग एसिड होएगा। सो पहला तो आप एसिडिक बफर की चंगी तरह गल करते हैं कि एसिडिक बफर उस इक्विमोलर कॉन्सनट्रेशन किहदी हैगी है वीक एसिड एंड स्ट्रोंग बेस एग्जाम्पल इहदी लई हुई है CH3COH विद सोडियम एसीटेट CH3COONA ठीक है। इहदी अराउंड पीएच भी दित्ती है 4.7 थी। नैक्सट देख लो इहदी बेसिक बफर है ने बेसिक बफर दे विच वीक बेस हो गया नाल सॉल्ट स्ट्रोंग हो गया सॉरी एसिड स्ट्रोंग हो गया उल्टा होएगा ना जो बेसिक बफर है वीक बेस स्ट्रोंग ही होएगा नाल एसिड। सो इहदी एग्जाम्पल बहुत वधिया हैगी अमोनीयम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनीयम क्लोराइड मैं मास्टर किट ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन आया ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਵਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਲਾ जो है कॉन्सैप्ट करने तो बाद ये कुछ ना पेयर है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इत्थों बन सकता या क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो रजिस्ट करते चेंज इन पीएच ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਦੇ ਬਫਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਪੇਅਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬਫਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬਫਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਐਸਿਡਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਸੋਡੀਅਮ ਐਸੀਟੇਟ ਨਾਲ ਫਾਰਮਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਸੋਡੀਅਮ ਫਾਰਮੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਸੋਡੀਅਮ ਬੋਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮੋਨੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਦਾ ਅਮੋਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पेयर है ने वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बन सकता है। नैक्सट है बफर एक्शन यही एबिलिटी किसी बफर सोल्यूशन की एबिलिटी कितना रजिस्ट कर सकते हो चेंज इन पीएच ਨੂੰ कि ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹ 'ਚ ਐਸਿਡ ਜਾਂ ਬੇਸ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪੀਐਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਕਿੰਨੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਉਹਦਾ ਬਫਰ ਐਕਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਬਫਰ ਸੋल्यूशन ਇਹ देखो ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਐਸਿਡਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਬਫਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੀ ਨੋਨ ਪੀਐਚ ਕੈਨ ਬੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਅਸੀਂ ਪੀਕੇ ਤੇ ਪੀਕੇਬੀ ਵੈਲਿਊ ਬੀਕ ਐਸਿਡ ਜਾਂ ਬੀਕ ਬੇਸ ਦੀ ਪੀਕੇ ਬੀਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਪੀਕੇਬੀ ਉਹਦੀ ਬੀਕ ਬੇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਂਡਰਸਨ ਹੈਸਲਬੈਲਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਸਿਡਿਕ ਐਂਡ ਬੇਸਿਕ ਬਫਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਬ੍ਰੌਨਸਟਨ ਲੋਰੀ ਕੰਸੈਪਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਐਸਿਡ ਬੇਸ ਬਣ ਗਿਆ ये एसिड ने अपना H पॉजिटिव इन्हों दे दिता इन्हें लै लिया ये बेस हो गया हुण ये कॉन्जुगेट एसिड हो गया एसिड का कॉन्जुगेट सॉरी बेस हो गया हर मैं दस्सिया ही ना एसिड का कॉन्जुगेट बेस हुंदा सो के दी वैल्यू भी मैं तुहानूं लिखानी दस दित्ती हो किद्दां लिखी दी उपर प्रोडक्ट की कॉन्सनट्रेशन नीचे रिएक्टेंट की हुण वाटर इत्थे क्यों लिखा कोई वाटर की कॉन्सनट्रेशन कॉन्सटेंट है इस करके वो नहीं ऐड होनी रीअरेंज कर लिया इधर लै गए H3 इनू के ना इधर मल्टीप्लाई कर दी ये वाली चीज़ आ गई दोनों साइड लॉग ले लिया इधर भी लॉग ले लिया इधर भी लॉग ले लिया लॉग एम इंटू एन लॉग एम प्लस एन होंगे इसलिए प्लस आ गया ठीक है। इतने दोनों साइड माइनस ना मल्टीप्लाई किया क्यों क्योंकि माइनस H3 लॉग H3 की कॉन्सनट्रेशन जी पॉजिटिव आयन्स की इन इक्वल टू होंगी पीएच इस करके इतने पीएच आ गया तो माइनस लॉग के इक्वल टू पी के आ गया ठीक है। दिस इज़ द अगेन इतने आ गए साढ़े को प्लस लॉग ये उपर लै गए ये नीचे ये भी चेंज कर दिता हुण ये की सीगा साडे कोल कॉन्जुगेट
बेस सीगा ना इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस उपर कॉन्जुगेट बेस नीचे की सीगा एसिड सो इन्हें इस टर्म के नाल लिख लिया इनू ही आप हैंडरसन हैसलबेल्च इक्वेशन कहते हैं ठीक है ये वाला हुण ये जिहड़ा एक्स नैगेटिव अपॉन एच एक्स आया ये रेशो आ गई कॉन्सनट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस टू दी एसिड एंड द एसिड प्रेजेंट इन द मिक्सचर मतलब ये कॉन्जुगेट बेस ते एसिड कितना प्रेजेंट है सिंस एसिड जो वो वीक एसिड है ये आयोनाइज बहुत घट करता है वीक एसिड के होंगे जो बहुत घट आयोनाइज करेंगे सो दैट कॉन्सनट्रेशन जी एच एक्स की होगी नेगलिजिबल होएगी डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्सनट्रेशन ऑफ एसिड टेकन फ्रॉम द बफर देयरफॉर द कॉन्सनट्रेशन ऑफ जी एच एक्स टेकन की जाती एज ओरिजिनल कॉन्सनट्रेशन ही लेने आप जिन्नी ओरिजिनल वो लवेंगे ठीक है क्योंकि वीक होने करके आयोनाइज तो ये घट करेगा सो इस करके ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्जुगेट बेस एक्स नेगेटिव कम फ्रॉम द आयोनाइजेशन ऑफ सॉल्ट ऑफ द एसिड देयरफॉर कॉन्सनट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस मे बी टेकन एज द फिर आप की करते हैं जो कॉन्जुगेट एसिड आ जो आप लिया हुआ कॉन्जुगेट बेस उसकी जगह की लै लें सॉल्ट ही लै लें ठीक है देयरफॉर दी कॉन्सनट्रेशन कॉन्जुगेट बेस की किद्दां ली जाती है एज अ सॉल्ट ली जाती है सो इनू रिप्लेस कर दोगे सॉल्ट के नाल जिस सॉल्ट ते एसिड दोनों की मान लो कॉन्सनट्रेशन सेम हो जाती बराबर हो जाती है तो कट के 1 आ जाएगा तो लॉग 1 कितना होंदा 0 ये टर्म 0 बन जाएगी पी एच इक्वल टू पी के आ जाएगा ये पूछा जा सकता कि पी के जो पी एच है बफर सोल्यूशन का वो पी के ए बराबर कदों आता जदों सॉल्ट तो जोड़ा एसिड दोनों की सेम कॉन्सनट्रेशन होएगी ये पूछा जा सकता ठीक है सो जे तुम इक्वेशन भी याद रख लेंगे हो तो लिए बिल्कुल औखा नहीं होगा तुहानूं आराम नाल समझ आ जाएगा सिमिलरली आप इसकी बेस लिए फाइंड आउट कर सकते हैं जिद्दां आप एसिड लिए फाइंड आउट की है यदि असी बेस लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है वो उत्थे की सीगा उपर कॉन्जुगेट बेस है इत्थे कॉन्जुगेट एसिड अपॉन बेस आ जाएगा ठीक है अगेन इनू कॉन्जुगेट बेस में आप सॉल्ट नाल रिप्लेस कर देंगे सानू पता पी एच प्लस पी ओ एच दोनों की जो टोटल तो पी एच इक्वल टू 14 होंगी है सो इतने जी पी एच इक्वल टू कितनी आ जाएगी 14 माइनस पी ओ एच की वैल्यू पुट कर दो इतने ये आ जाएगी ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट आ हुण अगेन ये मोलर कॉन्सनट्रेशन बेस तो कॉन्जुगेट एसिड जोड़े ये सेम हो जाएंगे ठीक है पी एच जी बफर सोल्यूशन पी ओ एच ऑफ द बफर सोल्यूशन विल बी टेकन एज पी के बी एंड पी के बी की वैल्यू जी आ वो देख लेनी है एंड द बेस एंड द पी एच विल बी इक्वल टू कितनी हो जाएगी 14 माइनस पी के बी एग्जाम्पल ये कहता जो पी के बी एन ओ एच की जी है इन्हें दी हुई है देयरफॉर पी एच बेसिक बफर कंटेनिंग तो भी फिर उन्हें अप्रॉक्स की करना है 14 चो माइनस हो जाना ये बराबर ठीक है सो ये बेस ਲਈ हैगा इट मे बी नोटेड दैट पी एच ऑफ द बफर सोल्यूशन इज नॉट अफेक्टेड बाय द डिल्यूशन जी पी एच है ना किसी बफर सोल्यूशन डिल्यूशन ना भी अफेक्ट नहीं होंगी बिकॉज रेशो अंडर द लॉगरिथमिक टर्म अनचेंज क्योंकि लॉगरिथमिक टर्म च रेशो की रही है अनचेंज रही है सो ये मैं तुहानूं दो दसी एक एसिड बारे सारा दसिया एक बेस बारे बेस के आ देख लो आप पी एच प्लस पी ओ एच इक्वल टू ये पी ओ एच बेस करके लिया इनू आप पी ओ एच लिख दिया बेस लिए पी एच है एसिड लिए क्लीयर क्योंकि ओ एच असी बेस के विचों लेने इस करके क्वेश्चन देख लो मास्टर किडर च गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज बफर सोल्यूशन यही वाला सीगा ठीक है यही वाला आप बेसिक बफर के ना अमोनीयम क्लोराइड तो अमोनीयम हाइड्रोक्साइड देखो वैसे तो भी देखो लास्ट गल हुई है बाकी ये वाला मैं तुहानूं क्या टेबल भी याद कर लियो दिस टेबल देखो अमोनीयम हाइड्रोक्साइड अमोनीयम क्लोराइड इतने एग्जाम्पल भी दी है ये पेयर है नहीं उन्होंने पूछा सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेयर ऑफ बफर सोल्यूशन सो मास्टर किडर क्वेश्चन ही देख लो आया सी सिंपल सीगा बिल्कुल बफर सोल्यूशन जो कोई भी क्वेश्चन पुट करेगा वो तुसी कर सकते हो या तुहानूं इहदे विचों क्वेश्चन पुट हो सकता है जो मैं तुहानूं टर्म कराई हैगी है देखो ये वाली ये इक्वेशन बारे भी पूछ सकता इस बारे ये जी इक्वेशन हैगी है सो ये तुहानूं पता होनी चाहिए दिस इज़ नोन एज हैसलबेल्च इक्वेशन जिस पी एच इक्वल टू पी के प्लस लॉग तुसीं इहनूं इस तो भी सारी अगे ड्राइव कर सकते हो बाकी ये जे ये भी पूछा जा सकता कि जो पी एच जी मोलर कॉन्सनट्रेशन जी एसिड के सॉल्ट की बराबर हो जाती पी एच बफर सोल्यूशन की कि इक्वल हो जाएगी पी के ए की वैल्यू ही बराबर हो जाएगी इसी करके उनके लिखा फॉर प्रिपेयरिंग ए बफर सोल्यूशन ऑफ रिक्वायर्ड पी एच मतलब जो असी किसी रिक्वायर्ड पी एच का बफर सोल्यूशन बनाना असी सिलेक्ट करते हैं वी सिलेक्ट दैट द एसिड दोज पी के वैल्यू इज क्लोज टू पी एच मतलब जी पी के के बराबर हो पी एच के हो वैरी क्लोज हो ठीक है सो इसलिए एग्जाम्पल्स उन्हें अलग जी एग्जाम्पल्स लिया वो इदा ही है मतलब वो यही फैक्टर में इंट्रोड्यूस करके ही लई जिद एग्जाम्पल ली उन्हें एसिडिक एसिड पी के एच 4.76 आ पी एच बफर सोल्यूशन फॉर्मड बाय एसिडिक एसिड एंड सोडियम एसिड टेकन इन इक्वल टू मोलर कॉन्सनट्रेशन ये अराउंड ही लई 4.76 अगे बेस की बनाई हुई है पी ओ एच पी के भी के की जगह के भी आ गया प्लस लॉग वही हम कॉन्जुगेट बेस होएगा अपॉन कॉन्जुगेट एसिड अपॉन बेस होएगा उस तो उल्टा चलेगा बस वो बस ये फॉर्मूला इंट्रोड्यूस होया 14 माइनस पी के बी के बराबर हो गया
क्लियर हो सकता तुहानूं पेपर 'च एग्जाम्पल पूछ लवे कि जिद्दां पीके वैल्यू NOH की दित्ती है 4.746 हुण पता बेस की गल हुई है फिर पीएच जी बेसिक बफर सोल्यूशन जिहड़ा कंटेन करेगा सेम मोलर कॉन्सनट्रेशन ऑफ बेस ते इहदे सॉल्ट दी कितनी हो जाएगी 14 चो माइनस कर देना जो बेस की गल होनी तुसीं 14 चो माइनस कर देना सो हुण जिहड़ा बफर होएगा पीएच की क्लोज कितनी होगी 9.255 ठीक है अमोनीयम सोल्यूशन ते अमोनीयम क्लोराइड सो इन्ना किनू ध्यान रख लेना इस क्वेश्चन पुट हो जाना जे होया तो होर इस तो ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनना जो वीडियो पसंद आई लाइक एंड कमेंट जरूर करो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।